Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with a question from the novel Tess d'Urberville, and the question is Tess as a Pure Woman. This novel is written by Thomas Hardy, and about the writer we will do in next question. And today I will describe Tess as a pure woman. So this is the question form. Bring out the significance of the subtitle A Pure Woman which Hardy gives to his novel. तो टेस d'Urberville को एक सब टाइटल दिया गया है एंड दैट इज़ अ प्योर वुमेन. तो ऐसा है कि हार्डी ने ये टाइटल इस नॉवेल को दिया है, तो इसके लिए हमें ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब टाइटल. तो इस सब टाइटल के सिग्निफिकेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो टेस को एक प्योर वुमेन कहा गया है. तो कुछ क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं दैट शी इज़ नॉट ए प्योर वुमेन बिकॉज शी इज़ raped by Alec and then she killed Alec. So how can one say that she is a pure woman? So let's see. When Tess of the d'Urberville was first published, it caused as a storm. Many people found the subtitle of the book offensive. They did not understand how Tess could be called a pure woman when her sexual and criminal guilt were beyond dispute. तो जब ये टेस d'Urberville पब्लिश हुई थी तो इस पर एक स्टॉर्म हो गया था क्रिटिक्स का. क्रिटिक्स लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि इसके सबटाइटल के ऊपर ये उन्होंने कहा था कि ये एक ऑफेंसिव है क्योंकि टेस जो है वो सेक्सुअल और क्रिमिनल गिल्ट से, मतलब टेस का जो कैरेक्टर है वो सेक्सुअल और क्रिमिनल गिल्ट वाला है. तो ऐसे में हम उसे प्योर वुमेन कैसे कह सकते हैं. In a note, Hardy regretted the fact that his critics had ignored the meaning of the word pure in nature. तो इस पे हार्डी ने एक नोट पे रिग्रेट किया है कि उसके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने रियल मीनिंग को नहीं समझा. प्योर जो वर्ड है उसके रियल मीनिंग को, इसके रियल नेचर को नहीं समझा. Hardy had not only made the unfortunate girl the protagonist and named the novel after her, but also given the novel a subtitle A Pure Woman. हार्डी ने सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट गर्ल को अपना प्रोटैगनिस्ट नहीं बनाया है और लेकिन उसे एक सबटाइटल भी दिया गया है एंड दैट इज़ अ प्योर वुमेन. हार्डी हैड द फॉलोइंग लाइन्स. तो ये हार्डी के लाइन्स हैं. हार्डी हैड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर reproduced on the title pages. Poor wounded name my bosom as a bat shall lose thee. This is quotation line. According to Kettle, the subject of the novel state clearly by Hardy to be the fate of a pure woman. तो ये कैटल की कोटेशन है. The subject of the novel state clearly by Hardy to be the fate of a pure woman. एक प्योर वुमेन का क्या फेट है, क्या उसकी डेस्टिनी है, ऐसा इसमें सब्जेक्ट इस नॉवेल को बनाया गया है. लुकिंग एट टेस कैरेक्टर एज मेंटेन्ड बाय हार्डी, one realizes that Tess has always had the purest motives and intentions, untainted by anything corrupt, selfish, impure or immoral. तो टेस का जो कैरेक्टर है जो हार्डी ने बनाया है उसे कैसे मेंटेन किया गया है कि टेस जो है एक प्योरेस्ट मोटिव्स और प्योरेस्ट इंटेंशन की लेडी है. अनटेंड मीन्स उस पर किसी भी तरह की ये जो बुराइयां हैं इन सब से वो बची हुई है, मतलब इन सब बुराइयों से वो स्पॉइल नहीं है. अनटेंड विदाउट स्पॉइल्ड. The entire question of Tess' innocence or guilt is to be decided in the light of a relationship with Alec d'Urberville. तो जो सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसकी इनोसेंस पे, तो वो किस लिए हो रहा है, उसके रिलेशन जो एलेक d'Urberville के साथ था उस रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कैन वी से टेस इज़ अ प्योर वुमेन. The three
outstanding events in her association with Alec are his seduction of her, her eventual surrender to him when she becomes his mistress, and her murder of him. 3 चीज़ें हैं जिससे कि वो एलेक से एसोसिएट करती है. एक तो उसका सिडक्शन ऑफ, एक तो उसका एलेक ने उसे सिड्यूस किया था. दूसरा टेस ने सरेंडर कर दिया था खुद को एलेक को, मतलब उसकी मिस्ट्रेस बन गई थी. और थर्ड वन था कि टेस ने मर्डर किया था एलेक का. If anyone not acquainted with the full story were to be told of just these incidents without any elaboration, he would experience a sense of shock at the use of the word pure for Tess. तो अगर किसी को सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में पता है कि Alec raped Tess and Tess surrendered himself, she became mistress of Alec, and the third one is Tess murdered Alec. सिर्फ ये 3 चीज़ें अगर बताई जाएं तो कोई भी बाकी स्टोरी की उसे नॉलेज ही ना हो, एक्वेंट मीन्स उसे नॉलेज ही ना हो बाकी स्टोरी की, तो सिर्फ ये 3 इंसिडेंट बताए जाएं तो कोई भी इस पर शॉक हो जाएगा कि टेस को हम प्योर वुमेन कैसे बोल सकते हैं. एलेक इज अट्रैक्टेड बाय टेस फेस एंड फिगर. ही एक्सप्लॉइट्स हर ट्रस्टिंग नेचर एंड हर अनअवेयरनेस ऑफ द वेज ऑफ द वर्ल्ड. एलेक जो है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और जो नेचर था टेस का, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट करने का, इस नेचर को वो एक्सप्लॉइट करता है. और उसकी जो अनअवेयरनेस थी कि वे ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो अनअवेयर थी, मतलब कि संसार में क्या क्या चीज़ें कैसी हो जाती हैं ये उसे नहीं पता था. शी वॉज़ वेरी इनोसेंट और उसका जो नेचर था वो ट्रस्टिंग था. तो इस उसकी ऐसी गुडनेस को एलेक ने एक्सप्लॉइट किया था. Tess' interest in him at her first meeting with him is confined to seeking a job in his household. सबसे पहली मीटिंग एलेक से तब होती है जब उसके हाउस होल्ड में वो जॉब के लिए सीख करती है. She is distressed when Alec feeds her with strawberries. She wipes off the kiss he gives her on her second journey to the slopes. तो वो उसे प्रोटेस्ट भी करती है, मतलब पहले वो उसे स्ट्रॉबेरीज खिलाता है, फिर वो उसे किस करता है नेक्स्ट जर्नी पर जब वो स्लोप पे जाती है. तो इस चीज़ को वो थोड़ा मतलब उसका थोड़ा हल्का प्रोटेस्ट भी करती है. टेस डज नॉट वाइप्स ऑफ मीन्स जैसे ही वो उसे किस करता है वो उसे वाइप्स ऑफ कर देती है. टेस डज नॉट लाइक हिज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. शी आस्क्ड his pardon, but Alec becomes still more angry and sad. और जब टेस प्रोटेस्ट करती है और उससे मतलब पार्डन लेती है, वो उसे माफ़ करने के लिए कहती है, मतलब छोड़ने के लिए कहती है, तो एलेक क्या कहता है, What am I to be repulsed by a mere chit like you? तो ये एलेक के वर्ड्स हैं. When he kisses her again, she gets down from the carriage. Thus, we see that there is nothing at all of the flirt in Tess. Her pure nature is fully revealed in all this. According to Weber, in Tess, Hardy put more of his heart than he put into anything else that he wrote. ये quotation line है. Then comes the crucial incident in Tess' life, her seduction by Alec. Tess is in a state of physical exhaustion, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड थी. टेस बहुत ज़्यादा टायर्ड थी. एंड मेंटली वेरीनेस, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वो टायर्ड थी बिकॉज ऑफ हर क्वाल विद द कंपेनियन. वो क्योंकि उसके कंपेनियन के साथ उसका क्वाल हो जाता है. शी नेचुरली फॉल्स इनटू अ स्लीप. She cannot resist Alec's action and she hardly understands what he is doing till it's too late. तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे जब वो थक के सो रही होती है, एलेक जो है उसे सिड्यूस करता है और इससे पहले कि वो कुछ जानती या समझती ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था. This last circumstances is important. She says to Alec, My eyes, these are the words of Tess, my eyes were dazed by you for a little and that was all. I didn't understand your meaning
till it was too late. तो ये कोटेशन लाइन है. To her mother, Tess says much of the same thing, blaming the mother for not having given her any guidance in such matter and for not having warned her of the danger that was in manfolk. तो अपनी मदर से भी टेस बात करती है कि उसकी मदर ने उसे ये सब बातों के बारे में नहीं बताया था कि आदमी लोग कैसे होते हैं, इस दुनिया में क्या कुछ हो सकता है, ऐसे डेंजर से उसकी मदर ने उसे अवेयर नहीं किया था. She is no longer a virgin, but her purity is intact. Intact mean जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, डैमेज नहीं होने वाली. इंटैक्ट का मीनिंग होता है जो डैमेज नहीं होता. We must not, however, forget in our enthusiasm what happens or what may be suspected to have happened during the brief period of which Tess says on in the D'Urberville household. आफ्टर शी हैज़ बीन सीड्यूस्ड. तो इतने सी चीज़ों पर जो हुआ है या जो हो सकता था, इन सब बातों के बारे में हम जान के पूरी तरह से हम कंक्लूड नहीं कर सकते. जो भी चीज़ें टेस के साथ वहाँ पर होती हैं, सिर्फ उन्हीं बातों पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते. टेस ओवरपावरिंग सेंस ऑफ गिल्ट इज़ अनदर आर्ग्यूमेंट इन हर फेवर. तो अब इन सब के बाद क्या होता है, टेस का जो ओवरपावरिंग सेंस है, मीन्स जो गिल्ट का जो सेंस है, उसके बारे में भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं. व्हेन शी गोज इनटू द वुड्स क्लोज टू हर विलेज इन ऑर्डर टू फाइंड सम कंफर्ट इन हर मिसफॉर्च्यून्स. तो जब वो जंगल में चली जाती है, वुड्स मतलब जंगल में चली जाती है अपने मिसफॉर्च्यून से थोड़ा सा कंफर्ट लेने के लिए, तो इस टाइम पे भी ये जो गिल्ट है ये उसको परेशान करता रहता है. देर शी फील्स लिस्ट सोलिटरी इंडीड. यहाँ पे वो तो बहुत कम जो है अकेलापन फील करती है. शी बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल सीन. एट द सेम टाइम शी कैन नॉट गेट रिड ऑफ हर सेंस ऑफ गिल्ट वॉकिंग अमंग द स्लीपिंग बर्ड्स इन द हेज वॉचिंग द चर्पिंग रैबिट्स. शी थिंक्स दैट शी इज़ वायलेटिंग द इनोसेंस ऑफ नेचर. तो अब टेस कहाँ पर है, वो वुड्स में है और वो नेचर को एंजॉय कर रही है और वो अपने आप को अकेला भी बहुत कम समझ रही है. लेकिन इसके साथ साथ जो इसका सेंस ऑफ गिल्ट है वो उसे परेशान करता रहता है, उससे उसे छुटकारा नहीं मिलता. टेस रिकवर्स हर पीस ऑफ माइंड आफ्टर सम टाइम बट द सेंस ऑफ गिल्ट रीअसर्ट्स इट एवरी टाइम. इट शोज शी इज़ अ प्योर वुमेन. तो टेस का जो गिल्ट है बार बार उसके दिमाग में आता है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो एक प्योर वुमेन है. टेरवर जॉनसन, दिस इज कोटेशन लाइन. टेस इज हार्डीज मोस्ट मास्टरली पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन एंड सो लविंगली ही डिपिक्ट्स हर इन सो मैनी डिफरेंट सिचुएशंस. मिसेस डर्बीफील्ड रिएक्ट्स इन द नेचुरल वे टू टेस सैड एक्सपीरियंस. Sex is a natural activity and Tess is a child of nature. We see her growth to womanhood. हम उसकी ग्रोथ वुमनहुड तक देखते हैं. हर लग्जूरियंस ऑफ आस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टेस का होना एंड फुलनेस ऑफ ग्रोथ और पूरी तरह से उसका यंग होना नॉट एज आइसोलेटेड फैक्ट बट एज द पार्ट ऑफ ब्रीमफुलनेस ऑफ नेचर इटसेल्फ. ब्रीमफुलनेस किसी चीज़ से पूरी तरह से भरा होना, मतलब जो टेस है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और वो यंग थी, तो ये एक नेचुरल पार्ट है. इन दिस नॉवेल हार्डी emphasizes द इनोसेंस ऑफ नेचर. नेचर इज़ नॉट अ फोर्स फॉर गुड और फॉर इविल. इन दिस सेंस टेस इज़ इनोसेंट. टेस डिड नॉट सरेंडर हर हार्ट. इंडीड हर हार्ट was almost unaware of what was happening. टेस जो है पूरे दिल से उसमें इन्वॉल्व नहीं होती जो भी उसके साथ होता है, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो ये सब चीज़ों से अनअवेयर रहता है. Thus from this view also Tess is a pure woman. Within the novel we have radical changes in Angel's character in that he, तो एंजल क्या कौन है जिससे टेस प्यार करती है, who had doubted Tess' purity so much so
that he had deserted her and gone to Brazil. टेस को एंजल डिजर्ट करके ब्राज़ील चला जाता है. After staying for some time in Brazil, Angel begins to discredit the old standards of morality. कुछ टाइम के बाद वो ओल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी को डिस्क्रेडिट करता है. डिस्क्रेडिट करना मीन्स किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देना. तो बाद में पहले तो वो उसे छोड़ के चला जाता है जब उसे सच्चाई का पता चलता है एलेक और टेस का. लेकिन बाद में वो इन पुराने जो स्टैंडर्ड्स को जो है उसको डिस्क्रेडिट करता है. एंजल कम्स टू रियलाइज दैट ब्यूटी और अगलीनेस ऑफ कैरेक्टर ले नॉट ओनली इन इट्स अचीवमेंट but also in its aims and impulses. It is true history lay not among things done, but among things willed. This is quotation line. कि true history वो नहीं है जो हुआ है, लेकिन वो है जो कि होना चाहिए था या जिसके लिए इच्छा की गई थी. It is obviously from this criteria that Tess proves to be a perfectly pure character at heart. According to Leslie, Angel Clear is one figure in the book who is at all of the ordinary run of Angel Clear is one figure in the book who is at all out of the ordinary run of human nature. Hardy has presented Tess to the readers faithfully. He views the matter from different angles and at different stages in her life. But each time he comes to the same conclusion that Tess is pure. For instance, when Tess, working as an agricultural laborer with her baby in her arms, feel miserable at the thought of her seduction, Hardy at one stage asks, was once lost always lost? Really true of chastity. तो जब जो टेस है वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी जब काम कर रही होती है तब भी वो अपने बेबी को देख के उस सब चीज़ों को फील करके बहुत ज़्यादा परेशान होती है. तो हार्डी इस पे क्या कहते हैं कि जो एक बार जो चीज़ लॉस्ट हो गई वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है. और ये चेस्टिटी के बारे में ट्रू है कि एक बार अगर चेस्टिटी मतलब लॉस्ट हो गई, एक बार पवित्रता ख़त्म हो गई या तो वो हमेशा के लिए ही खो जाती है. इन शॉर्ट, हार्डी एनालाइजेस द माइंड एंड थॉट ऑफ टेस आफ्टर द seduction and she is proved as a pure woman. Tess' surrender to Alec towards the close of the story is not a willing surrender. There are some reasons behind it. टेस जब सरेंडर करती है, एलेक की जब मिस्ट्रेस बनती है, उसके पीछे भी कोई रीज़न था. 2 pathetic letters from her have not gotten any response from Angel. उसने एंजल को अपनी सच्चाई बताने के लिए लेटर्स लिखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीज लेटर्स डिडंट रीच टू एंजल. कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, शायद उसके पास पहुँचे भी नहीं लेटर. तो इसके लिए टेस जो है एकदम थक जाती है और वो एलेक की मिस्ट्रेस बन जाती हैं. द बर्डन ऑफ हर एग्जिस्टेंस हैज़ बिकम इनटॉलरेबल टू हर. हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर विदाउट अ शेल्टर. सर्कमस्टांसेस ये ऐसे हो जाते हैं कि उसे ऐसा करना पड़ता है. एंड दिस टाइम टू इट इज़ हर बॉडी दैट सरेंडर्स. हर माइंड एंड स्पिरिट रिमेन इंटैक्ट. इट शोज दैट शी इज़ अ प्योर वुमन. The murder of Alec vindicates Tess' purity. Even if this action of her be taken into account, we shall not consider her guilty in any moral sense, though legally, of course, she is certainly not innocent. तो जब टेस जो है एलेक का मर्डर करती है तो इससे भी पता चलता है कि वो प्योर वुमेन है. लीगली तो वो प्योर नहीं है, लेकिन मोरली वो अभी भी क्या है, एक प्योर वुमेन है. When people talk to Tess' purity and impurity, they hardly have the murder in mind. It is only the sexual aspect of her relation with him that matters in their eyes. जब
लोग उसे इम्प्योर कहते हैं या उसे प्योर कहते हैं, उस टाइम पे वो सिर्फ उसका सेक्सुअल रिलेशन देखते हैं, उसके मर्डर को वो अपने माइंड में कंसीडर नहीं करते. Tess does this crime only due to Angel, because once he said to her, if her seducer had been dead, the situation would have been different. तो टेस को एक बार एंजल ने कहा था कि अगर तुम्हारा सिड्यूसर जिसने तुम्हारा रेप किया है वो अगर ना जिंदा होता तो सिचुएशन कुछ अलग होती. तो ये भी एक रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से जो एलेक का मर्डर करती है टेस. Thus, Tess, through the murder of Alec, vindicates her purity and grandeur. Hardy has narrated Tess' story so painfully that all our sympathies are with her even when she commits the murder. According to Hoff, Tess is a victim of civilization. She is also a gift of civilization. This quotation, to sum up, Tess is one of the most enduring characters in the whole range of English fiction, and Hardy has very artistically presented her as a pure woman. Tess' motives and intentions are pure. She is pure from the biblical criteria. She possesses quality of heart, patience, faithfulness, etc. तो टेस जो है एक बिब्लिकल क्राइटेरिया से भी एक प्योर वुमेन है. उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? उसका दिल बहुत अच्छा है, पेशेंस है और फेथफुलनेस है. वो किसी पे ट्रस्ट कर लेती है, कोई उस पर भी बहुत इजीली ट्रस्ट कर सकता है. अकॉर्डिंग टू कैटल, टेस इमर्जेस अ फाइन नॉवेल, अ मोरल फैबल, द मोस्ट मूविंग एक्सप्रेशन इन आवर लिटरेचर. सो दिस इज द कोटेशन लाइन ऑफ कैटल. I hope you will like this, and if you like, then press the button like and subscribe. Thank you.